Welcome to this video, my friend. So, what is the difference between an insurance advisor and a complete financial mentor? इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको दो बातें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। द फर्स्ट थिंग, हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे, एंड सेकेंड थिंग, हो सकता है यू से कि यार ये बात तो ठीक नहीं है, ओके, बट रियलिटी एंड ट्रुथ, सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सो वॉच दिस वीडियो विद वेरी फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन, एंड देन उसके बाद में अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है या इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो भी आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, देन कंपेयर कि एक्चुअली आप कहां पे स्टैंड करते हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको बात समझ में आ जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको बात अभी समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट the insurance advisor versus complete financial mentor, and let me get into the mind map. So first thing, if you are here with me, you're watching on YouTube or anywhere, subscribe this channel, and if you like it, give me the comment and thumbs up after watching this video. So let's get into the game, straight to the point. So the first thing, insurance advisor versus financial mentor. There are two kind of philosophy in marketplace. Okay, so I'm going to cover the philosophies, market trend, insurance advisor, financial mentor, and the core difference and how not to get confused, and good news for you. Okay, so there are two philosophy in market. The first philosophy is hunting to get the business. That's the first philosophy in financial advisor market, जहां पे हमें hunt करना है to get the business, and ये philosophy बोलते हैं purely selling oriented. And second is the product approach selling, that मेरे पास ये product है तो मुझे उसी को बेचना है, so उसके लिए मुझे hunt करना पड़ेगा, and I will go for that. That is the philosophy in market. That's the first philosophy. Second philosophy is a farming based philosophy, which means that I want to sell, I will sell, मैं sell करूंगा, लेकिन difference ये है, I will be selling as per the customer need. What my customer want, I'll be selling him or her as per their requirement. That's the difference. It's a farming mindset. And second, it's a lifelong business approach mindset. So जो hunting philosophy है, which is a product based selling, it's a short term game, quick cash. आज मुझे business चाहिए because I need business today, because I need sales today, because I need money today, so I have to go and sell. That's it. I'm not going to think about tomorrow क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, next month क्या होगा. I'm not bothered about it. In this philosophy, hunting mindset. Second philosophy, farming, जहाँ मैं customer के according sell कर रहा हूँ. It's a lifelong approach. ये केवल दो फिलोसफी मार्केट में काम करती है. पहला क्वेश्चन ये कि which philosophy से आप आज काम कर रहे हो. Answer this question at the end of the video on comment. Second thing, let's talk about the market trend. Market में trend क्या चल रहा है? Okay, how the market is going on at this point of time. So the first thing, if you see the market, whole market, financial market, it is based on product base. It is based on product basis selling. Like insurance company, mutual fund company, जितनी कंपनी है, उनके पास अपने प्लान है, जो भी है, whatever the plan we got, we have to sell it. And there's nothing wrong about it. I'm not saying if they are wrong, they are right. No. All I am doing, I am showing you the concept. That's it. You choose what you want and what the way you want to. That's it. It's your choice. So the first trend in market is the product based market. Second trend market, and why it is there, why market product based चल रहा है, because most of the जो financial advisors हैं, they don't know कि एक 360 डिग्री फाइनेंशियल एडवाइजरी का कॉन्सेप्ट भी मार्केट में हो सकता है. They are not aware about it. Most of the people, okay, they are not aware कि वो एक complete financial mentor बन सकते हैं. They are not aware about it. Second thing, they don't have access. उनके पास में जितने भी मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक्सेस नहीं है. So they don't have the right to sell those products. That's it. तो पहला जो हो गया वो अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और दूसरा उनके पास सिस्टम और एक्सेस नहीं है. इस वजह से जो मार्केट में जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग अप्रोच कर रही हैं, एंड दे आर हैप्पी, राइट. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इट इज टारगेट ओरिएंटेड बेस्ड मार्केट, राइट. यू हैव टू अचीव योर टारगेट कम व्हाट में, मतलब वो सेल्स के नंबर होने चाहिए. अगर आपने टारगेट अचीव किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, इतना किया इतना मिलेगा, इतना किया इतना मिलेगा. इट्स लाइक कंप्लीटली टारगेट माइंडसेट अप्रोच. सेल सेल सेल. सेकेंड, अगर आप पूरी एनर्जी देखें, पूरा इमोशन देखें, so the whole emotion, the overall energy is a pressure oriented sales. ना नेगेटिव एनर्जी. इतना नहीं, जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, बॉस अब नहीं किया तो फिर यू आर गॉन. ऐसे कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी. there's no encouragement. Most of the things are like negative environment. You have to do it, that come what may. There's no if and but, just do it or not, that's it.
So target based trend is going on. Third concept is a competition analysis. Now this I'm talking about the company जो कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को. The first thing they look कि कौन क्या कर रहा है. Like X company looking what is doing Y company. इसका ये प्लान है, अच्छा इसका ये प्लान चल रहा है, तुरंत ही देखना 2 महीने के अंदर उसी प्लान का जो हूबहू एकदम कॉपी पेस्ट एक दो फीचर इधर उधर करके सेम प्लान मार्केट में लॉन्च हो जाएगा. Which means they are not focused about customer benefit. All they focus कि कौन क्या कर रहा है उसका कॉपी पेस्ट करो और मार्केट में लॉन्च कर दो ताकि मार्केट में हम किसी से पीछे न जाए. दिस इज द अप्रोच मार्केट में आजकल चल रही है. Who is doing what, who is selling what, उसी का कॉपी पेस्ट करके मार्केट में लॉन्च कर दो. Hardly any focus about the customer benefit aspect. And the fourth trend in market, जो जीता वही सिकंदर. और जिसने परफॉर्म किया, कहते हैं ना सेल्स तो नंबर से चलती है, जिसके पास नंबर है, जिसने सेल्स किया, जिसने बेचा वो सिकंदर है, बाकी दुनिया तो टाइम पास है. द वे सेल्स पीपल लाइक हैव बीन ट्रीटेड, राइट. जो जीता वही सिकंदर, राइट. सो यू विन बाय हुक और बाय क्रूक, दैट्स इट. सो कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है उन लोगों को जो सीरियसली एफर्ट्स डालते हैं, जिन्होंने एक्चुअली काम किया ग्राउंड लेवल पे, बट समहाउ उनको रिजल्ट नहीं मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो उनको कंपनियां इग्नोर कर देती है. जिसके बॉस नंबर दिख गए बैलेंस शीट में, जिसने कंपनी को बिजनेस दे दिया वो तो राजा बन गया, बाकी जनता की टाइम उनको घुमा दिया, 5 स्टार होटल ले गए, विदेश घुमा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और डाल दिया सोशल मीडिया में बॉस कंपनी केयर फॉर यू, दिस फैमिली ट्रिप, दिस ट्रिप, दैट्स इट. इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है टू अंडरस्टैंड कस्टमर क्या चाहता है, मेरी जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं हो पा रहे, जो सेल करना चाहते हैं, जो अच्छे लोग भी काम करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं काम हो पा रहा है, इसके बारे में सोचने किसी पास टाइम नहीं है. जो 5-10% लोग जो सेलू हो गए, जिनको लोगों को घुमाना आता है, बट दे आर सेलिंग और कंपनी उन्हीं से पैसा कमा रही है, और वीयर ट्रेंड के ऊपर दुनिया चली हुई है. आई एम सॉरी, मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा कड़वा है, बट आई हैव अ डेयर टू से, क्योंकि आई हैव नो फियर टू लूज एनी, राइट. बिकॉज़ I personally believe what I am giving is my responsibility. जिम्मेदारी मेरी है कि I deliver, I create some authentic and a responsible content, right? It's not just me selling my training and coaching program. No, yes, I do sell. I recommend my training coaching program, पर उससे पहले मेरी जिम्मेदारी है to aware people. Make sense? And same जिम्मेदारी आपकी भी है as a financial advisor. Okay? So second thing is like the market trend. Now third concept come to the insurance advisor. So who is your insurance advisor? एक इंश्योरेंस एडवाइजर वो पर्सन है जो कि कस्टमर की हेल्प करता है. बहुत अच्छा काम बाय द वे, आई एम नॉट अगेंस्ट द इंश्योरेंस, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री, बहुत अच्छा काम करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत मेहनत भी करते हैं. एक इंश्योरेंस एडवाइजर वो है जो अपने कस्टमर की हेल्प करता है उसको फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, और हेल्प करता है टू दे कैन सेव देयर मनी. करेक्ट, ये इंश्योरेंस एडवाइजर का काम है. लेकिन इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर बाउंड है उसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. बस काम बहुत अच्छा है, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब हेल्पिंग पीपल. जो मैंने भी बनाया आई थिंक 2 हफ्ते पहले मेरा वीडियो, दैट हाउ डू यू आर हेल्पिंग द इकोनॉमी एंड द कंट्री टू बी स्ट्रांग इफ यू आर सजेस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. बट यहाँ पे जो सैड पार्ट है वो ये है कि एक्चुअली बिकॉज ऑफ यू आर एज इंश्योरेंस एडवाइजर आप बाउंड हो, तो आप उस कंपनी के बियॉन्ड जा नहीं सकते. सो होता क्या है, यू हैव टू डू सम टाइम फोर्सफुल सेलिंग, बिकॉज यू कैन नॉट गो सम, ऑफ कोर्स आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट सम टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, बट बिकॉज वी डोंट हैव, वी हैव टू सेल. सो इट्स मिस सेलिंग एंड फोर्स सेलिंग, यहां से उसका जन्म होता है एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर. नाउ डू नॉट टेक इट पर्सनली. मैं एक आपके सामने कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं, एंड आई सेड यू कि लिसन दिस एंटायर वीडियो विद ओपन माइंड. Okay, so you can take a decision for yourself. So now let's come to the financial mentor. Who is a financial mentor? एक financial mentor वो पर्सन है जिसका फाइनेंस मार्केट में जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, व्हाटएवर, उसको नॉलेज है. एंड अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज, उस फाइनेंशियल मेंटोर के पास में एक्सेसिबिलिटी है, उसके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, सिस्टम है कि वो पर्सन कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी कॉर्पोरेट एफडी, कोई भी बॉन्ड, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वो अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकता है. ये कोर डिफरेंस है एक फाइनेंशियल एडवाइजर में, फाइनेंशियल मेंटोर में, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर में.
अभी फाइनेंशियल मेंटोर मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि आज के टाइम में पीपल वांट टू बी मेंटोर। अगर आपको नॉलेज है तो अपने क्लाइंट को नर्चर करें, मेंटोर करें, जैसे मैं मेंटोर करता हूं अपने कस्टमर। मेक सेंस? सो दिस इज हाउ अ डिफरेंस है एक इंश्योरेंस एडवाइजर में और फाइनेंशियल मेंटोर में। नाउ अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस। व्हाट इज द कोर डिफरेंस? सबसे बड़ा अंतर क्या है एक इंश्योरेंस एडवाइजर में और फाइनेंशियल एडवाइजर में? वो ये है द वे दे थिंक। फिर बोल रहा हूं, द वे एक इंश्योरेंस एडवाइजर सोचता है और द वे एक फाइनेंशियल मेंटोर से, बहुत बड़ा अंतर है, सोच का अंतर है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर 24 घंटे ये सोचता है कि मैं अगली पॉलिसी किसको बेचूं, दैट्स इट। हाउ टू सेल अनदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट्स इट। दिस इज द मेजर फोकस फॉर अ टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल मेंटोर? ही और सी think how can I find out my customer real need, मैं कस्टमर की सही तरीके से कैसे नीड पता लगा सकता हूं, then I can suggest to my customer what the person is looking for so they can buy themselves. It's a supermarket approach, which means it's like my customer want this and I have all the accessibility so I can help them choose the best thing they want for themselves. ये डिफरेंस है थिंकिंग का। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, नॉट अबाउट द सिस्टम, वो सब मार्केट में अवेलेबल है। लोगों का माइंड बहुत नैरो है यार, यही यही अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें क्या जरूरत है, बढ़िया तो चल रहा है, कमा रहे हैं, ठीक है यार, अच्छी लाइफ है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट आप देखेंगे आने वाले 1 से 5 साल के बाद में यू विल रियलाइज कि कस्टमर इज मोर स्मार्ट। ही विल आस्क यू, बॉस आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? नाउ यू विल से नहीं सर उसमें इसलिए नहीं मैंने बताया क्योंकि उसमें से मुझे पैसा कुछ नहीं मिलता। यू कैन नॉट से टू योर कस्टमर कि सर उसमें मुझे कुछ पैसा नहीं आता। That's a wrong practice. Makes sense? So this is the core difference between an insurance advisor and a financial mentor. Now don't get confused. The first confusion आपको नहीं आना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के खिलाफ हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं सेलिंग वर्ल्ड के खिलाफ हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिंग एट ऑल। आई एम अ सेल्स कोच। I push people hard to sell. So how can we against selling? I am not against selling. All I am against mis-selling, forceful selling, hunting mindset. इसके मैं against. Of course, I teach how to do you like go and push yourself and get customer. But mis-selling, forceful selling, you know what? आपको सुन के हैरानी होगी. There are a lot of insurance people. उन्होंने कई सारे सीनियर सिटीजन को ये बता के इंश्योरेंस प्लान दे दिया कि सर ये सिंगल प्रीमियम पेमेंट है, और वो बेचारे मतलब 60 इयर्स ओल्ड पीपल जिनके बच्चे यहाँ रहते नहीं है और वो धक्के खाते हैं ब्रांच में जाके, किसी ने जाकर उनको मिस सेलिंग कर दिया। कैन यू इमेजिन? इस तरह के लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई हैव टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस इन द फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री एज द फाइनेंशियल एडवाइजर कोच, सो दैट इस इंडिया के अंदर एक सही प्रैक्टिस का जन्म हो, ताकि वी कैन क्रिएट अ प्रॉस्परस सोसाइटी अराउंड अस एंड यू कैन बिकम सक्सेसफुल। So do not get confused. I'm against about selling or insurance. No, I totally support it. Okay. Now, good news for you. The good news for you that you can become a financial mentor. That's it. ये good news है। आपको आज कितना आता है, कितना नहीं आता, अंग्रेजी बोलनी आती है, आपको कहाँ रहते हैं, आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, कहीं भी रहते हैं, you can become a financial advisor, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। If I talk about myself, I'm living in Delhi and I have my customer all over India and some people are part of out of the India. Okay, even the people like USA, they are watching my content and they are paying me to learn from me. Why? Because the power of the digital world. You can also become a financial mentor अगर आप अपने दिमाग की बत्ती को जलाने के लिए तैयार हैं तो। Now my question to you, आपको 2 चीजें सोचनी चाहिए। The first thing, क्या आपको लगता है कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप केवल एक ही जगह फोकस्ड हैं और आप यही करते रहेंगे, then do you think after 1 year, 2 year, 3 year you are going to lose something? Because ये मार्केट जो इवॉल्व हो रही है, ये कॉन्सेप्ट आप रोक नहीं सकते हैं। So do you think that this is the time to change the way you think? And second thing, type that do you agree on the philosophy of financial mentor? And if you are somebody, अगर आप वो हैं, you really want to become a financial mentor, a digital financial mentor, and you want to build a super profitable financial advisory business in India, और आप चाहते हैं आपके कस्टमर ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी हो सके, because as a digital financial advisor, what I will ask you to do, my friend, you can join me on my coming live mastery program.
उसमें आई विल शो 3 सीक्रेट। द फर्स्ट सीक्रेट कैसे लोग नीड एनालिसिस करते हैं, सेकंड सीक्रेट कैसे इंटायर सेल्स प्रोसेस की मास्टरी करते हैं, क्लाइंट अट्रैक्शन से लेके सर्विस देने से लेके कैसे क्लाइंट को आप लाइफ टाइम सर्व कर सकते हैं एंड मेक रेगुलर कैश फ्लो, एंड थर्ड सीक्रेट how do you sell the customized advisory, which I told you, how to provide the customized financial advice services on that system, and then you can decide for yourself. If you like it, please subscribe my channel, give me thumbs up, comment that you found it valuable, and also agar aapko valuable laga hai, do not keep it yourself, suggest this to your friend and family so that we can create the awareness about this financial market in our society. Thank you very much. We'll see you on the next video. All the best. God bless. Take care.